آج ہم خدا کے کلام میں واس کے عنوان خدا پر ایمان کے ساتھ شریک ہوں گے۔ کتاب مقدس کے ذریعے ہم نے سیکھا ہے کہ ہمارے ایمان کے آباء و اجداد کا ہمیشہ خدا پر پختہ ایمان رہتا تھا اور ابدی آسمان کی بادشاہی کی امید لیے فرما برداری سے زندگی گزاری۔ اگر ہم میں ایمان نہ ہو تو کیا ہوتا ہے؟ عبرانیوں باب 11 میں کہا گیا ہے کہ اور بغیر ایمان کے خدا کو پسند آنا ناممکن ہے۔ خدا جو بلند مقاموں میں رہتے ہیں، تمام کائنات کی تخلیق پر اور 3 سمتی جہان میں رہنے والے تمام بنی آدم پر اختیار رکھتے ہیں۔ اگرچہ زمین گرد کے ذرے جتنی چھوٹی ہے، پر خدا اس زمین پر رہنے والے لوگوں سے محبت رکھتے ہیں، اس لیے وہ خود جسم میں آئے تاکہ زمین پر رہنے والے سب لوگوں کو بچا سکیں۔ ہم کتاب مقدس سے اس کی تصدیق کر سکتے ہیں۔ روحانی جہان میں شیطان ابلیس نے آسمان پر خدا کی نافرمانی کی تھی اور خدا کے خلاف کھڑے ہونے کے لیے کئی بدکار پیروکار جمع کر لیے۔ اس نے انہیں فریب دے کر جمع کیا، اس نے بہتیروں کو لالچ دیا اور بہکایا۔ ہم کتاب مقدس سے سیکھ چکے ہیں کہ شیطان نے آسمان پر خدا کے فرزندوں اور فرشتوں کو خوشامدی باتوں سے ورغلایا اور آخر کار ان کے زمین پر پھینکے جانے کا باعث بنا۔ شیطان ابلیس کا کام خدا کے فرزندوں کو آسمان کی امید کھو دینے پر مجبور کرنا اور دنیا کی چیزوں کی طرف توجہ دلا کر انہیں مادی چیزوں پر مائل کرنا ہے تاکہ وہ بالکل بھی آسمان کی بادشاہی کی تیاری نہ کر سکیں۔ جب ہم دنیا کے لوگوں کی باتوں پر غور کریں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ انہیں طب، صحت، خوراک، اپنے بچوں کی شادی اور بچوں کے اسکول میں دلچسپی ہوتی ہے۔ جب ہم ان کی باتوں کا خلاصہ کریں تو ہم دیکھ سکتے ہیں کہ وہ سب بے معنی باتیں کرتے ہیں۔ ہم مشکل سے ہی انہیں ان کے مستقبل کے بارے میں بات کرتے سن سکتے ہیں۔ بلند آسمانی مقام جہاں ہم مستقبل میں جائیں گے، اس کے لیے ان کا کوئی منصوبہ اور کوئی تیاری نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ خدا کی بادشاہی پر اعتقاد نہیں رکھتے اور خدا پر ایمان نہیں رکھتے ہیں۔ اندیکھے جہان پر ان کا کوئی اعتقاد نہیں ہے۔ تقریباً 2000 سال پہلے ابتدائی کلیسیا کے مقدسین کو کئی طریقوں سے ستایا گیا تھا، صرف اس لیے کہ وہ یسوع پر اعتقاد رکھتے تھے۔ ان سے بہت بدسلوکی کی گئی تھی۔ بہت سے ناموافق حالات جیسے کہ معاشرے، خاندان اور پڑوسیوں کی طرف سے ناموافق حالات کے باوجود ان کا ایمان نہیں بدلا تھا، کیونکہ ہماری دم بھر کی ہلکی سی مصیبت ہمارے لیے ازحد، بھاری اور ابدی جلال پیدا کرتی جاتی ہے۔ چونکہ ان کا ایسا ایمان تھا، اس لیے جب انہیں ایمفی تھیٹر میں شیروں کے آگے پھینکا گیا، وہ بالکل خوفزدہ نہیں تھے اور انہیں کھونٹے پر بھی جلایا گیا تھا۔ ایسی اذیت اور ظلم جس کا تجربہ ابتدائی کلیسیا نے کیا تھا، اگر آج رونما ہو تو کیا ہم اپنا ایمان قائم رکھ سکتے ہیں؟ تصور کریں کہ ہم ان کے جیسے حالات سے دوچار ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم ایسے زمانہ میں رہ رہے ہیں جسے دیگر زمانوں کی نسبت زیادہ ایمان کا تیل درکار ہے۔ فرض کریں کہ ہم 2000 سال پہلے ابتدائی کلیسیا کے دنوں میں رہ رہے ہیں۔ اگر ہم سے حقارت، تضحیک، اذیت اور ظلم سے پیش آیا جائے
तो क्या तब भी हम मसीह पर ईमान रखेंगे, उन पर तवक्कुल और आखिर तक उनकी पैरवी करते हुए ईमान रखेंगे? इसीलिए आज हम खुदा पर ईमान का जायजा ले रहे हैं। ईमान की राह पर चलते हुए हमें कई तरीकों के मुकाबलों का सामना करना पड़ता है। हम ना चाहते हुए भी शैतान की कई रुकावटों का सामना करते हैं। तहम हमारे ईमान के अबाउजदाद के पास हर वक्त ऐसी हिकमत थी जिसकी वजह से ऐसी रुकावटें बेवकत बन गई, और अब वही हिकमत हमारे लिए नमूने का काम अंजाम देती है। जब हम खुदा पर ईमान रखें तो 10,000 रुकावटें भी हमारे लिए कुछ नहीं हैं, बल्कि हमारा ईमान बढ़ाने का किरदार अदा करती हैं। आए किताब मुकद्दस से इसकी तस्दीक करते हैं। इब्रानियों बाब 11 आयत 1 से देखते हैं। अब ईमान उम्मीद की हुई चीजों का इत्मीनान और अनदेखी चीजों का सबूत है, क्योंकि उसी की बाबत बुजुर्गों के हक में अच्छी गवाही दी गई। ईमान ही से हम मालूम करते हैं कि आलम खुदा के कहने से बने हैं। ये नहीं कि जो कुछ नजर आता है ज़ाहरी चीजों से बना हो। ईमान ही से हाबल ने काइन से अफजल कुर्बानी खुदा के लिए गुजरानी, और उसी के सबब से उसके रास्तबाज होने की गवाही दी गई, क्योंकि खुदा ने उसकी नजरों की बाबत गवाही दी, और अगरचे वो मर गया है तो भी उसी के वसीला से अब तक कलाम करता है। ईमान ही से हनूक उठा लिया गया ताकि मौत को ना देखे, और चूंकि खुदा ने उसे उठा लिया था इसलिए उसका पता ना मिला, क्योंकि उठाए जाने से पेशतर उसके हक में ये गवाही दी गई थी कि ये खुदा को पसंद आया है, और बगैर ईमान के उसको पसंद आना नामुमकिन है। इसलिए कि खुदा के पास आने वालों को ईमान लाना चाहिए। क्या ईमान लाना चाहिए? कि वो मौजूद है, यानी खुदा जिंदा है और काम करता है। ईमान लाना चाहिए कि वो मौजूद है और अपने तालिबों को बदला देता है। उनका ऐसा कवि ईमान था। नूह के दिनों में दुनिया को पानी से तबाह करने से पहले खुदा ने कहा कि वो जमीन को ऐसे बड़े सैलाब से गर्क करेंगे जिससे पहले कभी किसी ने नहीं देखा। नूह की बात करें तो जब वो बुलाया गया तो बगैर ईमान के उसके लिए काम की अंजाम दही मुश्किल होती। 7 आयत से जारी रखते हुए देखते हैं कि नूह का ईमान कितना बड़ा था। ईमान ही के सबब से नूह ने उन चीजों की बाबत जो उस वक्त तक नजर आती थी हिदायत पाकर खुदा के खौफ से अपने घराने के बचाव के लिए कश्ती बनाई, जिससे उसने दुनिया को मुजरिम ठहराया और उस रास्तबाजी का वारिस हुआ जो ईमान से है। ईमान ही के सबब से इब्राहिम जब बुलाया गया तो हुक्म मानकर उस जगह चला गया जिसे मिरास में लेने वाला था, और अगरचे जानता ना था कि मैं कहां जाता हूं तो भी रवाना हो गया। वो ये काम कर सके क्योंकि उनमें ईमान था। जिनमें ईमान था और जिनमें ईमान नहीं था, जब इनका मुआजना करें तो हम देख सकते हैं कि बेअबान में ईमानदार इसराइली मुल्क कनान में दाखिल हो सके। आज उनके ईमान हमारे लिए जिंदा मिसालें हैं। मुल्क कनान को दरियाफ्त करने के लिए मूसा ने इसराइल के हर कबीले से कुल 12 आदमियों को बुलाया जिनका ईमान अच्छा था और वो काबिले इत्तबार थे। 10 जासूसों की खबर यशवा और कालिब की खबर से बिल्कुल मुख्तलिफ थी। आज क्या हम दुनिया को ईमान की आंखों से देखते हैं, या क्या हम तमाम मुजहर और हालात को महज 3 सिमती जहान के इंसानी नुक्ते नजर से देखते हैं? इसमें बड़ा फर्क है। अगर नूह ने दुनिया को ईमान की आंखों से ना देखा होता तो वो कैसे इतने लंबे अरसे तक काम कर सकता था? वो किस वजह से ऐसा कर पाया था? अगरचे उसने पानी से दुनिया को तबाह होते और हलाक होते नहीं देखा था, पर वो खुदा के हुक्म के मुताबिक कश्ती बना सका था, क्योंकि उसे इत्तेकाद था कि खुदा का कलाम यकीनन पूरा होगा। एक कश्ती को आगे बढ़ाने के लिए मस्तूल दरकार होता है ताकि हवा के जोर को इस्तेमाल करें।
दुरुस्त सिमत लेने की गर्ज से पतवार दरकार होती है। ताहम नूह ने खुदा से नहीं पूछा कि मस्तूल कहाँ है, पतवार कहाँ है। उसे इत्तकाद था कि खुदा जो इब्तिदा से अंजाम की खबर रखते हैं, उन्होंने पेशतर ही सब चीजें तैयार कर रखी थी। चूंकि उसका खुदा पर पुख्ता ईमान था, इसलिए खुदा ने उसे रास्तबाजी का वारिस पुकारा। आप सब जब आप नूह की मिसाल देखें तो हमें भी खुदा से इस दुनिया को देखने के लिए ईमान की आंखें मांगनी चाहिए। क्या हमें नहीं मांगनी चाहिए? हमारे सामने बहुत सी रुकावटें हैं। मौजूदा वबाई मर्ज कोरोना वायरस उनमें से एक है। क्या ये नहीं है? जी, ये है। अगर कोरोना वायरस ना होता तो हम मुस्तैदी से खुशखबरी के लिए काम कर रहे होते। ताहम इस मौजूदा सूरत हाल में क्या हम महज 3 सिमती दुनिया देखेंगे, या क्या हम 4 या 5 सिमती जहानों के बारे में लिखे किताब मुकद्दस के कलाम पर तवज्जो देंगे? जो किताब मुकद्दस के कलाम पर तवज्जो नहीं देते, वो बिला तामुल अपनी जिंदगियों में बेकार चीजों का ताकुब करते हैं। इब्रानियों बाब 10 आयत 36 देखते हैं, क्योंकि तुम्हें सब्र करना जरूर है ताकि खुदा की मर्जी पूरी करके क्या हासिल करो? वादा की हुई चीज हासिल करो। अगर हम खुदा की मर्जी पूरी करें तो जब हम रूहानी फरिश्तों के और असल जहान में लौटेंगे तो हम उनके वादा के मुताबिक उनकी मर्जी पूरी करने पर अब्दी आसमान की बादशाही अजर में पाएंगे। खुदा ने वादा किया था कि वो हमें शाही काहिनों का फिरका बनाएंगे, और ये कि ना वहाँ मौत होगी और ना मातम, बल्कि अब्दी जिंदगी होगी। मजीद वादे भी रखे हुए हैं। आए आयत 37 से देखें, और अब बहुत ही थोड़ी मुद्दत बाकी है कि आने वाला आएगा और देर ना करेगा, और मेरा रास्तबाज बंदा ईमान से जीता रहेगा। और अगर वो हटेगा तो उसका ईमान कमजोर से कमजोर तर होता जाएगा, और इसकी बजाय कि वो आसमान की उम्मीद रखे, वो इस दुनिया की चीजों से मसहूर होता है। और अगर वो हटेगा तो मेरा दिल उससे खुश ना होगा। लेकिन हम हटने वाले नहीं कि हलाक हों, बल्कि ईमान रखने वाले हैं कि जान बचाएं। हम सबको बचाए जाना चाहिए। वो सब जो खुदा हमसे चाहते हैं कि हम करें, सब कुछ नबियों के वसीला दर्ज किया गया था। किताब मुकद्दस कहती है कि आदमी खुदा की तरफ से बोलते थे जैसे रूह कुद्दस उन्हें तहरीक बख्शता था। गिनती बाब 13 से देखते हैं कि हमें कौन सा सबक बख्शा गया है और हमारा कैसा ईमान होना चाहिए। गिनती बाब 13 आयत 25। और 40 दिन के बाद वो उस मुल्क का हाल दरियाफ्त करके लौटे, और वो चले और मूसा और हारून और बनी इसराइल की सारी जमात के पास दश्ते फरान के कादिस में आए, और उनको और सारी जमात को सब कैफियत सुनाई और उस मुल्क का फल उनको दिखाया। और मूसा से कहने लगे कि जिस मुल्क में तूने हमको भेजा था हम वहां गए, और वाकई दूध और शहद उसमें बहता है, और ये वहां का फल है। लेकिन जो लोग वहां बसे हुए हैं वो जोरावर हैं, और उनके शहर बड़े बड़े और फसीलदार हैं। और हमने बनी अनाक को भी वहां देखा। उस मुल्क के जनूबी हिस्सा में तो अमालिकी आबाद हैं, और हित्ती और यबूसी और अमूरी पहाड़ों पर रहते हैं, और समुंदर के साहिल पर और यर्दन के किनारे किनारे कनानी बसे हुए हैं। उन्होंने खबर दी कि वहां के लोग जब्बार और जोरावर हैं, और उनका मुकाबला करना उन्हें मुश्किल लगा, जो कि सच था। 10 जासूसों ने कहानी नहीं गढ़ी थी, बल्कि वही बयान किया था जैसा ये था। अगरचे उन्होंने वही बताया था जो उन्होंने देखा था। उन्होंने क्या नहीं बताया था? उन्होंने वादा के कलमात को निकाल दिया था कि खुदा उन्हें वो मुल्क देंगे, और उन्होंने अपना जाती फैसला और ख्यालात पहुंचाए जो उन्होंने महज 3 सिमती जहान में देखे थे। इस पर लोगों के जहन बिगड़ गए। आयत 30। तब कालिब ने मूसा के सामने लोगों को चुप कराया
اور کہا کہ چلو ہم ایک دم جا کر اس پر قبضہ کریں کیونکہ ہم اس قابل ہیں کہ اس پر تصرف کر لیں۔ آیت 31 سے جاری رکھتے ہیں، لیکن جو اور آدمی اس کے ساتھ گئے تھے وہ کہنے لگے کہ ہم اس لائق نہیں ہیں کہ ان لوگوں پر حملہ کریں کیونکہ وہ ہم سے زیادہ زور آور ہیں۔ کس نے ملک کنعان دینے کا وعدہ کیا تھا؟ خدا نے وعدہ کیا تھا۔ اگرچہ خدا نے انہیں کنعان دینے کا وعدہ کیا تھا، لیکن ملک کا حال دریافت کرنے کے بعد انہیں اسے فتح کرنا بہت مشکل کام لگا۔ شہر بہت بلند اور ناقابل تسخیر تھے، حتیٰ کہ وہ جباروں کی طرح لگتے تھے، جبکہ اسرائیلی ٹڈے لگتے تھے۔ یہ ان کی جسمانی ساخت اور قد و قامت میں بڑے فرق کو ظاہر کرتا ہے۔ وہ لوگ جنہوں نے خبر سنی بد دل ہو گئے۔ وہ مکمل طور پر بھول گئے کہ خدا نے انہیں کیا دینے کا وعدہ کیا تھا۔ جب ہم خدا کے کلام سے دور ہو جاتے ہیں تو ہم اپنا ایمان کھونے لگتے ہیں۔ باغ عدن میں جب خدا کا کلام بھلا دیا گیا تو شیطان کی باتیں آزمائش بن گئیں۔ نیک و بد کی پہچان کے درخت کا پھل کھانے کے لیے اچھا اور آنکھوں کو خوشنما معلوم ہوا اور عقل بخشنے کے لیے خوب لگتا تھا۔ آپ سب ہمیں ہمیشہ اپنے دلوں پر خدا کا کلام کندہ کرنا چاہیے اور یہ دیکھنے کے لیے اپنا جائزہ لینا چاہیے کہ کیا ہم خدا کے کلام پر توکل کرتے ہیں۔ اسرائیلیوں کے 40 سالہ بیابان کے سفر میں زیادہ تر نے اس پر توکل کیا جو انہوں نے دیکھا اور محسوس کیا تھا، لیکن یشوع اور کالب نے صرف خدا کے وعدہ پر توکل کیا۔ یہ وہ ملک ہے جس کا خدا نے ہمیں دینے کا وعدہ کیا تھا۔ اگرچہ وہ جسیم اور مضبوط نظر آتے تھے اور ان کے ہتھیار بھی ہمارے ہتھیاروں سے زیادہ جدید ہیں، کیا خدا نے ہمیں ملک دینے کا وعدہ نہیں کیا تھا؟ یہ صرف یشوع اور کالب ہی تھے جو خدا کے وعدہ پر قائم تھے۔ ان کی نظر میں بھی یریحو کے لوگ جب باروں کی طرح بڑے نظر آتے تھے۔ وہ کیسے مختلف نظر آ سکتے تھے؟ بے شک وہ ویسے ہی نظر آتے تھے۔ ان کی نظر میں بھی وہاں کے شہر بلند و ناقابل تسخیر تھے۔ تاہم یشوع اور کالب کے دل میں کون تھا؟ ان کے دلوں میں خدا تھا اور انہوں نے خدا کے وعدہ پر کامل اعتقاد رکھا۔ خدا نے ایسے وعدہ کیا تھا، ان کی پناہ ان کے سر پر سے جاتی رہی ہے اور وہ تو ہماری خوراک ہیں۔ آپ سب فرض کریں ایک چھوٹا بچہ آپ کے پاس آ کر آپ سے کہے کہ تم تو میری خوراک ہو، آپ کیسا محسوس کریں گے؟ آپ اس پر ہنسیں گے۔ جب ملک کنعان کے جباروں نے اسرائیلیوں کو دیکھا تھا تو انہوں نے بھی بالکل ایسا ہی محسوس کیا ہوگا۔ تاہم یشوع نے کیا کہا تھا؟ ان سے نہ ڈرو، خدا ہمارے ساتھ ہے۔ یشوع اور کالب کا ایمان ان کے ایمان سے مختلف تھا۔ نتیجتاً صرف وہی دو ملک کنعان میں داخل ہو سکے تھے۔ کنعان آسمان کی بادشاہی کو ظاہر کرتا ہے۔ آسمان کی بادشاہی میں داخل ہونے کی غرض سے ہمیں کیا درکار ہے؟ اس زمانہ میں ہمیں یشوع اور کالب جیسا ایمان درکار ہے۔ صرف خدا کے کلام پر ایمان۔ خدا نے کیا کہا تھا؟ اگر خدا نے کسی چیز کا وعدہ کیا ہو تو وہ یقیناً پورا ہوگا۔ خدا کبھی جھوٹ نہیں بولتے۔ اسی طرح میرا کلام جو میرے منہ نکلتا ہے کیا ہوگا؟ وہ بے انجام میرے پاس واپس نہ آئے گا، یہ یقیناً پورا ہوگا جیسے خدا نے کہا ہے۔ یہاں ہم یشوع اور کالب کا ایمان دیکھ سکتے ہیں۔ آئیں گنتی باب 14 آیت 1 پر جائیں۔ تب ساری جماعت زور زور سے چیخنے لگی اور وہ لوگ اس رات روتے ہی رہے۔ خدا نے انہیں ملک دینے کا وعدہ کیا تھا، لیکن لوگ خدا کے وعدے کو بھول گئے اور صرف جاسوسوں کی باتوں کا یقین کیا تھا۔ 2 آیت سے دیکھتے ہیں، اور کل بنی اسرائیل موسیٰ اور ہارون کی شکایت کرنے لگے اور ساری جماعت ان سے کہنے لگی، ہائے کاش ہم مصر ہی میں مر جاتے یا کاش اس بیابان ہی میں مرتے۔ خداوند کیوں ہم کو اس ملک میں لے جا کر تلوار سے قتل کرانا چاہتا ہے؟ آپ سب، خدا نے ہمیں یہ ایک نمونے کے طور پر دکھایا ہے تاکہ ہم جانیں کہ جب ہم ملتے جلتے حالات میں ہوں تو ہمارا ایمان کس قسم کا ہونا چاہیے۔
ताहम 3500 साल पहले इसराइली हालात और वाकयात को देखकर बददिल हो गए थे। 14 बाब 1 आयत से देखते हैं, तब सारी जमात जोर जोर से चीखने लगी और वो लोग उस रात रोते ही रहे। और कुल बनी इसराइल मूसा और हारून की शिकायत करने लगे और सारी जमात उनसे कहने लगी, हाय काश हम मिस्र ही में मर जाते या काश इस बियाबान ही में मरते। खुदावन क्यों हमको उस मुल्क में ले जाकर तलवार से कत्ल कराना चाहता है? फिर तो हमारी बीवियां और बाल बच्चे लूट का माल ठहरेंगे। क्या हमारे लिए बेहतर ना होगा कि हम मिस्र को वापस चले जाएं? फिर वो आपस में कहने लगे, आओ हम किसी को अपना सरदार बना लें और मिस्र को लौट चलें। तब मूसा और हारून बनी इसराइल की सारी जमात के सामने औंधे मुंह हो गए। और नून का बेटा यशवा और युफना का बेटा कालिब, जो उस मुल्क का हाल दरियाफ्त करने वालों में से थे, अपने अपने कपड़े फाड़कर बनी इसराइल की सारी जमात से कहने लगे कि वो मुल्क जिसका हाल दरियाफ्त करने को हम उसमें से गुजरे निहायत अच्छा मुल्क है। अगर खुदा हमसे राजी रहे तो वो हमको उस मुल्क में पहुंचाएगा और वही मुल्क जिसमें दूध और शहद बहता है हमको देगा। फर्क इतना हो कि तुम खुदावन से बगावत ना करो और ना उस मुल्क के लोगों से डरो। वो तो हमारी क्या है? वो तो हमारी खुराक है। किंग जेम्स तर्जुमा कहता है, वो तो हमारी खुराक है। इसका मतलब है कि वो तो हमारे लिए कुछ नहीं है। सही? तो फिर इसके बाद क्या कहा गया है? उनकी पनाह उनके सर पर से जाती रही है और हमारे साथ खुदावन है, सो उनका खौफ ना कर। वाकई वो ईमान के आला जंगजू थे। खुदा ने ईमानदारों और बेईमानों में फर्क किया और बेईमानों को कहा, चूंकि तुम में ईमान नहीं है, तुम हमेशा बेअबान में रहोगे। लिहाजा उन सब के हलाक हो जाने तक वो 40 सालों तक बेअबान में भटकते रहे। 10 आयत से जारी रखते हैं, जब यशवा और कालिब ने बोलना बंद किया तो लोगों ने उन्हें संसार करने की कोशिश की। तब सारी जमात बोल उठी कि इनको संसार करो। उस वक्त खैमा इज्तिमा में सब बनी इसराइल के सामने खुदावन का जलाल नुमाया हुआ और खुदावन ने मूसा से कहा कि ये लोग कब तक मेरी तौहीन करते रहेंगे और बावजूद उन सब मोजज़ों के जो मैंने उनके दरमियान किए हैं, कब तक मुझ पर ईमान नहीं लाएंगे? आप सब हमारे साथ कौन है? खुदा हमारे साथ है। सही? किसने इस कलीसिया को कायम किया है? खुदा ने इसे कायम किया है। चाहे दुनिया के तमाम मज़ाहिब यकजा हो जाएं, वो कुछ नहीं है। खुदा के लिए दुनिया की तमाम कौमें महज डोल में एक बूंद की मानित हैं। खुदा की नजर में सब कौमें हीच हैं और वो तराजू पर गर्द की मानित हैं। हम एहतियात से जायजा लेते हैं कि खुदा ने बेईमानों का फैसला कैसे किया। इस जमाना में भी अगर किसी खास सूरत हाल में हमारा ईमान ना हो तो हमारा अंजाम हलाकत होगा। 20 आयत से देखते हैं, खुदावन ने कहा, मैंने तेरी दरख्वास्त के मुताबिक माफ किया, लेकिन मुझे अपनी हयात की कसम और खुदावन के जलाल की कसम जिससे सारी जमीन मामूर होगी, चूंकि उन सब लोगों ने जिन्होंने बावजूद मेरे जलाल के देखने के और बावजूद उन मोजज़ों के जो मैंने मिस्र में और इस बियाबान में दिखाए, फिर भी 10 बार मुझे आजमाया और मेरी बात नहीं मानी। इसलिए वो उस मुल्क को जिसके देने की कसम मैंने उनके बाप दादा से खाई थी देखने भी ना पाएंगे, और जिन्होंने मेरी तौहीन की है उनमें से भी कोई उसे देखने नहीं पाएगा, पर इसलिए कि मेरे बंदा कालिब की कुछ और तबीयत थी। उसकी ज़हनियत दूसरों से मुख्तलिफ थी। भाइयों और बहनों, हमारी भी ज़हनियत 10 जासूसों से मुख्तलिफ होनी चाहिए। हमारी तबीयत भी वैसी होनी चाहिए जैसे यशवा और कालिब की थी। खुदा ने कहा, मेरे बंदा कालिब की कुछ और ही तबीयत है और उसने मेरी पूरी पैरवी की है। उसने कभी खुदा पर ईमान को नहीं छोड़ा, बल्कि आखिर तक खुदा पर ईमान रखा था। और उसने मेरी पूरी पैरवी की है। मैं उसको उस मुल्क में जहां वो हो आया है पहुंचाऊंगा और उसकी औलाद उसकी वारिस होगी। और वादी में तो अमालिकी और कनानी बसे हुए हैं। सो कल तुम घूमकर उस रास्ता से जो बहरे कुलजम को जाता है बियाबान में दाखिल हो जाओ। और खुदावन ने मूसा और हारून से कहा, मैं कब तक इस खबीस गिरोह की जो मेरी शिकायत करती रहती है बर्दाश्त करूं? बनी इसराइल जो मेरे बरखिलाफ शिकायतें करते रहते हैं, मैंने वो सब शिकायतें सुनी हैं। सो तुम उनसे कह दो, खुदावन कहता है, मुझे अपनी हयात की कसम है कि जैसा तुमने मेरे सुनते कहा है, मैं तुमसे जरूर वैसा ही करूंगा।
आयत 29, तुम्हारी लाशें इसी बियाबान में पड़ी रहेंगी और तुम्हारी सारी तादाद में यानी 20 बरस से लेकर उससे ऊपर ऊपर की उम्र के तुम सब जितने गिने गए और मुझ पर शिकायत करते रहे, इनमें से कोई उस मुल्क में जिसकी बाबत मैंने कसम खाई थी कि तुमको वहां बसाऊंगा जाने ना पाएगा, सिवा युफना के बेटे कालिब और नून के बेटे यशवा के। इसलिए आखिरकार खुदा ने कहा, इनमें से कोई उस मुल्क में जिसकी बाबत मैंने कसम खाई थी कि तुमको वहां बसाऊंगा जाने ना पाएगा, सिवा युफना के बेटे कालिब और नून के बेटे यशवा के। तो फिर बकिया लोगों के साथ क्या हुआ था? आयत 31, और तुम्हारे बाल बच्चे जिनकी बाबत तुमने ये कहा कि वो तो लूट का माल ठहरेंगे, उनको मैं वहां पहुंचाऊंगा, और जिस मुल्क को तुमने हकीर जाना वो उसकी हकीकत पहचानेंगे, और तुम्हारा ये हाल होगा कि तुम्हारी लाशें इसी बियाबान में पड़ी रहेंगी, और तुम्हारे लड़के बाले कितने सालों तक? 40 बरस तक बियाबान में आवारा फिरते और तुम्हारी जनाकारियों का फल पाते रहेंगे, जब तक कि तुम्हारी लाशें बियाबान में गल ना जाएं। अपनी कम एतकादी के बाइस वो अपने आप पर दुख लाए। ईमान की राह पर चलते हुए हमें कई मुश्किलात का सामना होता है। शैतान हमें ऐसे ही अकेला नहीं छोड़ देता कि हम उस उम्दा जगह को जा सकें। उसने आसमान पर हमें आजमाया, तो वो यहाँ इस जमीन पर कितनी आसानी से हमें आजमा सकता है। हमें महज खुदा पर ईमान रखना और हर वक्त खुदा को अपने जहनों में रखना चाहिए। सिर्फ जब हम खुदा के वादों पर कामिल इत्तेकाद रखें और उन्हें अमल में लाएं, तो हम उस पर फजल लम्हा का तजर्बा कर सकते हैं, जब हम एकदम बदल कर हवा में खुदा का इस्तकबाल करेंगे, ताकि आसमानी बाप और आसमानी माँ के साथ हमेशा रह सकें। इब्तदाई कलीसिया के मुकद्दसीन ने ये कामिल इत्तेकाद रखा कि अगरचे वो मर भी जाएं, फिर भी वो जी उठने की सुबह मसीह के साथ रूहानी बदनों में जी उठेंगे, ताकि आसमान में यानी अब्दी फिरदौस में अब्दी जिंदगी और खुशी का लुत्फ उठाएं। इसलिए अगरचे उन्हें नस्लों तक रोमी जाबरों से शदीद अजियत का सामना हुआ, उन्होंने हरगिज उनके आगे हार ना मानी। कोई भी या कुछ भी मसीहियों का ईमान ना तोड़ सका था। इस तारीख से सबक सीखते हुए आए हम आगे आने वाली तमाम मुश्किलात पर ईमान से गालिब आए। दानियल 3 बाब से देखते हैं। जैसा कि हम यहाँ देख सकते हैं कि बादशाह अपने शाही इख्तियार का इस्तेमाल करते हुए बाबुल में काम करने वाले दानियल के 3 रफीकों सिदरक, मिसक और अबद नजू को मजबूर करता है कि उस मूरत के आगे झुकें जो उसने नस्ब की थी। ईमान की ये सारी तारीख किताब मुकद्दस में किसी वजह से दर्ज की गई है। किताब मुकद्दस में दर्ज हर बात अक्स है और आज हमारी तालीम के लिए है। इसलिए जब कभी एक मिलती जुलती सूरत हाल रोनुमा हो, तो हमें याद रखना चाहिए कि किताब मुकद्दस क्या कहती है और इत्तियाद से सोचें कि खुदा कैसे नताइज सामने लाते हैं। 3 बाब 14 आयत में लिखा है कि नबूकदनेस्सर ने उनसे कहा, ऐ सिदरक और मिसक और अबद नजू, क्या ये सच है कि तुम मेरे माबूदों की इबादत नहीं करते हो और उस सोने की मूरत को जिसे मैंने नस्ब किया सिजदा नहीं करते? अब अगर तुम मुस्तैद रहो कि जिस वक्त किरना और ने और सितार और रबाब और बरबत और चौगन्ना और हर तरह के साज की आवाज सुनो, तो उस मूरत के सामने जो मैंने बनवाई है गिरकर सिजदा करो तो बेहतर। अगर तुम मूरत के आगे सिजदा करो तो मैं तुम्हें बचा लूंगा, पर अगर सिजदा ना करोगे तो उसी वक्त आग की जलती भट्टी में डाले जाओगे। और कौन सा माबूद तुमको मेरे हाथ से छुड़ाएगा? 3 सिमती जहान में ये बहुत होलनाक सूरत हाल है। बाबुल के तमाम उमरा ने मूरत के आगे सिजदा किया, मगर 3 मर्दों यानी सिदरक, मिसक और अबद नजू ने कहा कि वो हरगिज ऐसा नहीं करेंगे। आयत 16, सिदरक और मिसक और अबद नजू ने बादशाह से अर्ज की कि ए नबूकदनेस्सर, इस अमर में हम तुझे जवाब देना जरूरी नहीं समझते। देख, हमारा खुदा जिसकी हम इबादत करते हैं हमको आग की जलती भट्टी से छुड़ाने की कुदरत रखता है, और ए बादशाह, वही हमको तेरे हाथ से छुड़ाएगा। और नहीं तो ए बादशाह, तुझे मालूम हो कि हम तेरे माबूदों की इबादत नहीं करेंगे और उस सोने की मूरत को जो तूने नस्ब की है सिजदा नहीं करेंगे। तब नबूकदनेस्सर कहर से भर गया और उसके चेहरा का रंग सिदरक और मिसक और अबद नजू पर मुब्दल हुआ, और उसने हुक्म दिया कि
भट्टी की आंच मामूल से कितनी गुना? 7 गुना ज्यादा करें। 이르되 그 풀물을 뜨겁게 하기를 평일보다 몇 배나요? एक भट्टी लोहे को भी पिघला देती है, सही? 용광로 아니겠습니까? बादशाह ने हुक्म दिया कि भट्टी को मामूल से 7 गुना ज्यादा कर दें। यूं उसने तीनों मर्दों को जलाकर मार डालने का इरादा कर लिया था। ताहम मौत के खतरे के बावजूद सिदरक, मिसक और अबदनजू हरगिज ईमान में नहीं लड़खड़ाए। आयत 21। तब ये मर्द अपने जेर जामों, कमीजों और अमामों समेत बांधे गए और आग की जलती भट्टी में फेंक दिए गए। 던질 때 बस चूंकि बादशाह का हुक्म ताकीदी था और भट्टी की आंच निहायत तेज थी, इसलिए सिदरक और मिसक और अबदनजू को उठाने वाले आग के शोलों से हलाक हो गए। आग ने उन्हें हलाक कर दिया, जिन्होंने पकड़कर 3 मर्दों को भट्टी में फेंका था। और ये 3 मर्द यानी सिदरक और मिसक और अबदनजू बंधे हुए आग की जलती भट्टी में जा पड़े। तब नबूकदनजर बादशाह सरासीमा होकर जल्द उठा और अरकाने दौलत से मुखातिब होकर कहने लगा किया, हमने 3 शख्सों को बंधवा कर आग में नहीं डलवाया? उन्होंने जवाब दिया कि बादशाह ने सच फरमाया है। उसने कहा, देखो मैं 4 शख्स आग में खुले फिरते देखता हूँ और उनको कुछ जरर नहीं पहुँचा, और चौथे की सूरत इलाजादा की सी है। 신들의 아들과도 같도다 하고 तब नबूकदनजर ने आग की जलती भट्टी के दरवाजा पर आकर कहा, ऐ सिदरक और मिसक और अबदनजू, खुदा ताला के बंदो, बाहर निकलो और इधर आओ। बस सिदरक और मिसक और अबदनजू आग से निकल आए। तब नाज़मों और हाकमों और सरदारों और बादशाह के मुशीरों ने फराहम होकर उन शख्सों पर नजर की और देखा कि आग ने उनके बदनों पर कुछ तासीर ना की और उनके सर का एक बाल भी ना जलाया और उनकी पोशाक में मुतलिक फर्क ना आया और उनसे आग से जलने की बू भी ना आती थी। भाइयों और बहनों, इंसानी 3 सिमती जहान में ईमान की दुनिया अजीम है। 청량할 수 있는 것이 아닙니다. इस आजमाइश के बाद सिदरक, मिसक और अबदनजू कहीं ज्यादा पुरफजल रुतबा पर फाइज हुए, सही? 위치를 차지합니까? जब वो आसमान पर गए तो फरिश्तों ने उन्हें कितना ज्यादा सराहा होगा। हत्ता के मौत के मुंह में भी उन्होंने खुदा को कामिल ईमान और मोहब्बत दिखाई। 사랑을 나타낸 이들의 어떤 장한 그 의지가 उनके पुख्ता अज़्म ने हम सबको इस जमाना में एक सबक बख्शा है। दानियल के बारे में क्या ख्याल है? ये जानने पर भी कि बादशाह ने उसे शेरों की मान में फेंकने का हुक्म दिया था, उसने यरूशलेम की जानिब मुंह करके दिन में 3 बार दुआ करना जारी रखा। उसका ईमान भी अजीम था। 다니엘의 장한 그 믿음의 모습들은 खुदा ने ऐसा नहीं कहा कि उनके ख्यालात और रवैये लापरवाहों के से हैं, 무모하다라고 बल्कि वो वाकई काबिल दाद हैं। 참으로 장하다고 했습니다. 히브리서 इब्रानियों 11 बाब में कहा गया है कि बगैर ईमान के खुदा को पसंद आना नामुमकिन है। 하나님 चूंकि उनका खुदा पर ऐसा कामिल ईमान था तो वो जलती भट्टी में फेंके जाने से ना डरे, 세상의 군한 और अगरचे जमीन के बादशाह उनके खिलाफ खड़े थे, वो ना डरे। 우리 주위 हमारे हालात चाहे कैसे भी बदल जाएं, 조금도 हमें हरगिज डरना नहीं चाहिए। 것입니다. यसाया 41 बाब में खुदा कहते हैं, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। खुदा हमें खौफजदा ना होने को कहते हैं, इसके बजाय खुदा हमसे दलेर होने को कहते हैं। 언제까지요? कब तक? 마태복음 मती 28 बाब में खुदा कहते हैं, 아직 मैं दुनिया के आखिर तक हमेशा तुम्हारे साथ हूं। 우리가 हम हरगिज खुदा को ना भूलें। 버리지 마시고 하나님께서 हमें हमेशा सोचना चाहिए कि खुदा ने हमें क्या तालीमात और अहकाम बख्शे हैं ताकि हम दुनिया के सब लोगों को फायदा पहुंचा सकें। 사람들을 유익되게 하라고 하셨는지 यशवा और कालिब की तरह कनान में बाहिफाजत दाखिल होने लायक 여러분과 제가 되셔서 ईमान रखते हुए हम सब खुदा के कलाम पर तवज्जो करें। 무사히 또 당도할 수 있는 우리의 अब मैं आज का वाज खत्म करता हूं। 말씀 마치도록 하겠습니다. आपका बहुत शुक्रिया।